Hi, I hope I am audible and visible now. So, this is a quick tarot reading session. We'll be going for a read of 3 to 5 questions only. So, if you're connected, just put in a hi and I shall pull out a card for you. What you need to do is just write in a hi. That's it. I am on both the platforms simultaneously. So, Facebook से मैं सिर्फ 3 या 5 क्वेश्चंस ही उठाऊंगी. तो अगर आप यहाँ हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ आके तो क्वेश्चंस देख ही रही हूँ. Tomorrow will be at 7:30 I shall do a live session for angel guidance. So whoever needs an angel guidance can connect with me tomorrow 7:30 p.m. जिनके सवाल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रहेंगे वो प्लीज सुबह 7 बजे कनेक्ट करें, और जिनके सवाल एंजल गाइडेंस से रिलेटेड रहेंगे वो शाम को 7:30 बजे कनेक्ट करें. आपकी बात में आ रहे हैं, मेरे पास काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज आ रही है कि हमें आपकी बात में आना है, बट आई एम वेटिंग फॉर समबडी जिससे मिड लाइफ क्राइसिस वालों का कुछ बेनिफिट हो. मैं आई एम फोकस्ड फॉर आपकी बात. माई स्पेसिफिक concentration or focus is on the people with the 40 plus age group, और उनके लिए ही है वो आपकी बात. तो अगर आप 40 प्लस या मिड लाइफ क्राइसिस वालों के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक करना चाहते हैं कवर, तो यू मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता दीजिएगा. बट जनरल डिस्कशंस के लिए आई एम नॉट टेकिंग आपकी बात फॉर एनी अदर पर्पज. इट विल बी फॉर द पीपल विथ दोज इन द एज बैंड ऑफ 40 प्लस ओनली. मिड लाइफ क्राइसिस के लिए ही स्पेसिफिकली आपकी बात है. तो आपकी बात का जिनको भी हिस्सा बनना है, इट हैज टू बी somebody who will benefit the 40 plus age group segment, okay. So if you have a query pertaining to tarot, you can ask me. Just put in a yes or a hi and I'll pull out a card for you. And in the meanwhile, I'm connected on the platform also. I can see people joining in. Hi Mayuresh. Hi, sorry, Mayur Dhwaj Singh Rana. Here it is Mayuresh and here it is Mayur Dhwaj. Both of them together. I'll pull out a card for you, Mayur. I'm just typing in the response here.
I'll pull out that card for you, Mayur Dwaj. Think about the question in your mind, and the guidance card says, Krishna, devotion is the keyword, and trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized and you are loved unconditionally. That's the message of the, keepers of the light for you, Mayur. Mayuresh. Nahi, Mayur Dhwaj Singh Rana. And Mayuresh ka I have already responded to. I think I have Shaista connected there. Hi, Shaista. Okay. Gopal M. I think you're connecting here for the first time. Or maybe I am missing out. Jai Shri Krishna. See, it is giving me the notification of Arpita is live now. That's because of this platform, maybe. So if you have any queries as well related to spirituality, you can post those queries tomorrow in the morning session. I'll be taking up those question and answers. In fact, एक बार मैं अब दोपहर में भी आप लोगों से कनेक्ट करूँगी अराउंड 12 to 1 के बीच में, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं आई एम ट्राइंग टू मर्ज देम अप इन अ सिंगल क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू आंसर देम. अभी मेरे पास जो इकट्ठे हुए हैं क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग अप टुमारो मॉर्निंग. So if you have any queries pertaining to spiritual journey, you can definitely ask me. And of course, yes, I received a query that can I share this video. Yes, you can share this video. And also if you want me to, you want your friends to connect with me, you can share the link of my YouTube channel, because मुझे उतना YouTube and Insta आता नहीं है. Honestly, I've been regular on FB only. तो FB मेरे को चलाने में बड़ा easy पड़ता है, और FB के ही पोस्ट शायद इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं. सो अभी जो आने वाला टाइम है, आई एम ट्राइंग टू टेक माई कंटेंट टू यूट्यूब, बिकॉज उसमें आई थिंक ज़्यादा दिन मतलब हमेशा ही स्टोर रहेगा, क्योंकि फेसबुक में जो पोस्ट होता है वो शायद 30 days के लिए पोस्ट होता है. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द थिंग्स, बट I can see new people joining in, but I'm not able to recognize who, of course, on FB. Okay, so this card is for you, Buddha. This is the card, and it reads, increased awareness, deep connection, trust your inner voice. That is the card, deep connection and trust your inner voice. Yes, you are there in my FB friends list. Yes. No, I can see new people. I was not talking about you. I can see new people. What happens is ऊपर में वो दिखाता है ना how many are watching करके, तो वहाँ पे numbers बढ़ता है, ऊपर एक image आती है, and then suddenly क्या होता है, all the new faces I am not able to recognize. मेरे को ये समझ में आता है कि पहले जो ज्वाइन कर चुका है या, लेकिन एकदम से कुछ या तो फिर डीपी चेंज हुआ हो, क्योंकि कई लोग क्या अपना डीपी हटा के किसी और चीज़ का डीपी लगा लेते हैं. सुनील जैन, हाय सुनील. सो यू कैन वेरी वेल शेयर. अगर आपको आईडी शेयर करना है तो आप ये वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हो, कि 30 days तक तो ये वैलिड रहता है आई थिंक. और अगर किसी को आपको
लाइव में कनेक्ट करना है तो यू कैन इनवाइट, वो नीचे एक इनवाइट का ऑप्शन रहता है, आप इनवाइट का ऑप्शन भेज के भी अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो। अभी मैंने ना वो एक्चुअली एंटरटेन करना बंद कर दिया है कि लोग एक ही फैमिली से 4 लोग 5 लोग कनेक्ट होते हैं और यू नो दे कीप टैगिंग देयर फैमिलीज ओनली, तो आई हैव स्टॉप्ड टेकिंग दोज थिंग्स अप मे बी। Yeah, I can see those new faces, but I'm not able to recognize. So Sunil, if it is a high for the question, so I'll pull out the card for you. Sunil Jain. नहीं, यहाँ से भी आता है, you can share the link and invite. Okay, this is a beautiful message from Lord Ganesh, Sunil Jain, and it is infinite abundance. The card which is being pulled out for you is Lord Ganesha, infinite abundance, and obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. Obstacles are being removed. So Sunil, if it is anything related to any obstacle coming your way, it is being removed and you are getting connected spiritually in a better format, you know. So it's a beautiful card, Sunil Jain. Okay. I'll just take this up. Sunil, I hope you heard that. नहीं होगा तो जब मैं इसको डालूंगी अपडेट, मतलब वीडियो अपलोड करूंगी, तब आप रिपीट मोड पे देख सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम सुनील। आज सुबह एक क्वेश्चन आया था, आई डिड नॉट क्वेश्चन ऑन पर्पस। देयर वाज अ क्वेश्चन कि wait, let me just open that sheet up. While I was talking about the alignment of the chakras, so there was a question because when I spoke about the aromatherapy and when I was talking about the essential oils and I cited the example of going to spa and all, तो एक क्वेश्चन आया था, that wasn't so funny but still लोग ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं तो बड़ा ये लगता है कि कितना बेसिक्स जो है कितना लोगों को गलत मालूम है। उसने ये पूछा कि चंदन का जो तेल है दैट इज ओनली फॉर तांत्रिक प्रयोग, चंदन का तेल, कि आप चंदन का तेल कान के पीछे लगा लो एंड आपका सारा काम बन जाता है एंड दैट कैन बी सिद्ध हो जाएगा चंदन से। ऐसा नहीं है मतलब हमारे देश में लोगों ने तंत्र के नाम पर इतना ज़्यादा, देखो क्या होता है, आई वुड नॉट से कि चीज़ें होती नहीं है, गलत चीज़ें नहीं होती या गलत चीज़ों को सही नहीं किया जा सकता, बट देन व्हाट हैपेंस इज कि जब आप किसी भी चीज़ में तंत्र प्रयोग करते तो कोई भी गलत चीज़ एक टाइम पीरियड के लिए रहती है और वो एक टाइम तक ही आपको सपोर्ट करेगी, उसके बाद नहीं सपोर्ट करेगी। तो उस केस में क्या होगा कि आप कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने के लिए आप अपना कोई लॉन्ग टर्म नुकसान कर बैठोगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना ही अच्छा है। और ऐसा है, फूल जब खिलते हैं सबके लिए खिलते हैं, पेड़ जब लगते हैं सबके लिए लगते हैं। अब किसने किसका क्या यूटिलाइजेशन किया ये तो नहीं पता, पर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज हो, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं उसके। आई विल टेक दैट क्वेश्चन, जब सही समय आएगा तो मैं उसको भी सवाल को लूंगी। बट देन आई एम टेलिंग यू कि ऐसा कोई माइंडसेट बना के मत चले कि
ऐसा है तो यही होगा. हाय भानु, आई थिंक भानु इज कनेक्टेड. या हाय भानु. नो सुनील, आई डोंट प्रिडिक्ट एनी date and time. No, sorry, this is just a guidance reading. वो आपकी कुंडली देख के एस्ट्रो टैरो से पता चल सकता है. तो वो जो है पेड कंसल्टेशन के पार्ट में ही रहेगा. एंड यू हैव टू टेक अ पर्सनल अपॉइंटमेंट फॉर दैट, सुनील. अदरवाइज आई डोंट टेक सच थिंग्स. यहाँ पे फेसबुक लाइव्स में एंड फ्री टैरो रीड सेशंस में आई डू नॉट टेक एनी पर्सनल क्वेरीज, नथिंग. हाउ आर यू डूइंग? Yeah, I can see. Okay, I'll pull out a card for you, Bhanu. Hi, Karthik. So, Bhanu, the message for you today is from Kuthumi, who wears the cloak of wisdom. Okay, and Kuthumi says, you already know the answer you seek. Trust what you know. You already know the answer you seek. Trust what you know. So, अगर ऐसा कुछ है जिस आंसर का आपको जवाब मतलब ऑलरेडी पता है, जिस सवाल का जवाब, तो लिसन टू योर हार्ट, भानु. दैट इज व्हाट इट सेज. अनिक घोष, आपनी की गोयला घोष, शोकालिन गोत्र. I don't know what it is. Ami Shokalin Gotra, and I don't believe in this caste and Goyla Ghosh ki hoy ar ki hoy na ami jani na. Hi, good evening, Siddharth. I'm good, Karthik. Yeah, sure, I'll shuffle the cards for you. Karthik, I'll pull out. I'm pulling out the card for you, rather. I think there's no more question in between. Mayur, I do understand. ऐसा होता है. और पता है, मैं मतलब उस दिन मैं किससे कहीं बात कर रही थी. I was preparing a paper presentation for Canada. कनाडा में एक हमारा ग्रुप है जो we do tarot and एस्ट्रो का हम काफ़ी कुछ करते हैं. एस्ट्रो रेमेडीज से रिलेटेड हम काफ़ी डिस्कशंस करते हैं उस ग्रुप में. तो उसके लिए मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन किया था. Siddharth, please, no personal questions here. You just need to, I'll just pull out a message from the divine for you. That's it. So, Mayurish, Mayur Dwaj, what happened is, we were just discussing कि इतने सारे टोटके आ रहे हैं कि सब्जियों के दाम महंगे हो गए. आलू खिला दो गाय को and things will turn good for you. अब 50 रुपीज, 40 रुपीज, 60 रुपीज केजी आलू खा रहे हैं. and there's so many things, बहुत सारी चीजें हैं. मतलब ऐसे टोटके हैं ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते. अब वो एक जन बताते हैं राहु के लिए टोटके, नील के लिए, नील, that you don't have to take the liquid neil, you have to take the neil powder. Suddenly I came across एक ad in the newspaper की जो नील बनना बंद हो गया था, वो नील अब बनने लगा है दोबारा से. नील का पाउडर बनने लगा है because that is in demand. So maybe, I don't know, डिमांड एंड सप्लाई वाला मैकेनिज्म फिर से आ रहा है. भानु, आई विल कॉल यू.
I think I have your number. Just drop that with the FB messenger में डाल दो. भानु, I'll call you back. I do have your number. I think I do have your number. मैं शेयर करती हूँ. वही पुराना नंबर है मेरा. हाँ, एक्चुअली कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? This happens. और so Karthik, I'm pulling out a card for you. अभी जो मैसेज निकाला था, that was for Bhanu. Karthik, this is for you. It is Radha. The card is Radha, soul flame. Rediscover a lost part of yourself, Karthik. Rediscover a lost part of yourself. Experience relationship harmony and healing. So if it is like anything related to a relationship issue, any query related to a relationship issue, you need to rethink about, rebuilding yourself. And of course, you need to give it some time to heal. Great, that is a guidance. And how can Shivji do the job here? He is somebody who's... So Siddharth, now it is time for the message that comes for you. Deepu Yadav, I don't understand आपको, आप क्या जानना चाह रहे हो? I don't understand. But मैं जबलपुर में नहीं हूँ. जबलपुर मेरा बर्थ प्लेस है. जबलपुर आती जाती रहती हूँ. That is one thing. और मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती. तो जो भी पूछना है आप क्लियरली पूछो, क्लियरली लिखो. Thank you, Karthik. If it resonated, thank you so much for the feedback. Siddharth, I'll pull out a card for you. Siddharth, this is Green Tara. If you're following the Tibetan Tara goddesses, so this is the Green Tara. She, symbolizes abundance, and she symbolizes supreme protection. And the card says you are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. So you need to trust whatever you're doing. You need to trust. And you need to move beyond limitation. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation and trust. That's a beautiful message from Green Tarama. And I think you are blessed abundantly. Thank you so much. Okay. अरे आसमान के नीचे हूँ, जमीन के ऊपर हूँ. क्या करना है, बेकार हूँ. ऑनलाइन आपके साथ में एफबी पे बैठी हुई हूँ. That's more than enough. मैं पर्सनली मिलने तो किसी से भी नहीं वाली हूँ. So how does that matter कि मैं कहाँ हूँ? Thank you. You too. Stay blessed, Siddharth. Thanks a ton. रविंद्र कुमार सिंह जी, वाराणसी से मेरा बहुत क्लोज कनेक्ट रहा है. मेरा ननिहाल है, तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने में आती रहती हूँ. सवाल मैं पर्सनल नहीं ले पाऊंगी मुकेश जी. आई विल जस्ट पुल आउट अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू. दैट्स इट. हाय हेमंत. Okay.
ओके, ठीक है यादव जी, आप जबलपुर से हैं, अच्छी बात है। जबलपुर में मैं भी पैदा हुई थी, स्कूलिंग मैंने वहीं से की थी। 25 साल हो गए मैंने छोड़ दिया है जबलपुर। जबलपुर में नहीं हूँ, आना जाना होता है। जबलपुर बहुत मेरे मन के बहुत करीब की जगह है। नर्मदा जी के दर्शन करने में आती रहती हूँ कभी कभी। Yes, Mukesh, I'll pull out a card for you. It'll be a guidance card only. Okay, that is wonderful. Faith. The guidance card is faith. And it says humanity and benevolence. And stay calm, trust the good in yourself and others, and see the light in the world. So maybe what you asked for, maybe you can go on a foreign tour soon. Maybe you will be traveling abroad very soon, Mukesh Parekh, because it's a hidden line, read between the line kind of a situation. And all the very best. Yes, Mukesh, I just pulled out the card for you and the message was clear. You can, if you have missed out the reading, you can see it in the repeat. When I post this, you can see it in the uploaded tele-streaming. And I hope I'm not missing out on anybody's query. Chaliye, that one more card I will take, and that would be the last card for the day, because I was here only to pull out 4 or 5 cards, and I can see people. I can see सुनील जी, हाय। आप लोग जब सुबह कनेक्ट कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे तो मेरे को ना वो मैसेजेस दिखाई नहीं दे रहे थे, तो सुबह भी वही हुआ, दोपहर में भी वही हुआ। तो व्हेन आई कुड सी द मैसेजेस कमेंट्स लेटर, तो मैंने बाद में रिस्पॉन्ड किया था। प्लीज डोंट थिंक कि मैं अवॉइड कर रही हूँ या कुछ ऐसा कर रही हूँ, नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो रेगुलर मेरे इससे कनेक्टेड रहते हैं लाइव सेशन से। तो मैं जिस जानकारी के लिए बता दूं कि सुबह 7 बजे 7 बजे से अब से हम स्पिरिचुअल चीज़ों पे कनेक्ट करेंगे, द चक्रा हीलिंग। एंड मैं एक्चुअली पहले शिव स्वरोदय का सोच रही थी करने का, बट शिव स्वरोदय में क्या होता है कि लोगों का जो नाड़ी है वो उतनी एक्टिवेटेड नहीं रहती है, एंड इट इज़ बेटर टू कंटिन्यू डूइंग इट ऑन अ क्लोज ग्रुप। तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जो जनरल क्वेरीज होती है, उन सेशंस को हम मॉर्निंग में ले सकते हैं। और रादर कुछ चीज़ों को मैं और एलैबोरेटिव वे में बोलूँगी। कई लोग पूछते हैं कि मैं क्या फॉलो करती हूँ। अब एक जन जुड़े कि मैं भक्ति योग से हूँ, मैं ये मंत्र बोलता हूँ, वो मंत्र बोलता हूँ, मुझे ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है। आप कितने टाइम से? हाँ, सवाल करना लाजमी है लोगों का, पर मैं किसी पर्टिकुलर सेक्ट को पॉइंट आउट करके मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। पर एक चीज बोलूंगी, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का मैं बोलूंगी। जो एनर्जीज हैं, जो एनर्जी सर्कल्स हैं हमारी बॉडी में, जो एनर्जी चक्रास हैं, इनका काम क्या है लोगों को यही नहीं पता। बैलेंस कर लिया आपने एनर्जी, आपका जो चक्र जो है वो जागृत हो गए, कुंडलिनी आपकी जागृत हो गई, आपका सहस्रार चक्र तक जागृत हो गया। उसके बाद क्या? और आप उस चीज को जागृत क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, चक्का जो है, व्हील जो है वो घूमता है ना। जो हैं यहाँ पे सुन रहे हैं वो शायद इस चीज को रिलेट भी करें। हम एक साइकिल का एग्जाम्पल ले लें। तो पहले की साइकिल्स में क्या होता था, सामने वाला चक्का नहीं घूमता, पीछे वाला चक्का जब उसको चेन से जब वो आगे चलती है, पेडल से जब साइकिल खींचता है तो उसके एनर्जी से वो आगे बढ़ता है। पेडल सिर्फ एक चक्के से कनेक्टेड होता है, दूसरे वाले चक्के से कनेक्टेड नहीं होता। साइकिल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाइसिकल का, है ना। और पहले साइकिल्स में क्या होता था कि सामने एक छोटी सी लाइट लगी रहती थी जिसको डायनेमो इफेक्ट से चलाया जाता था कि अंधेरे में अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने साइकिल चलाई है, मैंने चलाई है। मैंने क्लास 7-8 तक साइकिल चलाई है, काफी साइकिल चलाई है, तो आई नो दैट। तो पुरानी साइकिल्स में जो मतलब बहुत पुरानी साइकिल्स होती थी वो मैंने देखी थी, उनमें एक डायनेमो इफेक्ट होता था कि जो साइकिल
का पहिया जैसे जैसे घूमता था वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, और साइकिल में लगा हुआ जो डायनामो जो लाइट होती थी वो जलती थी अंधेरे में. इट यूज टू वर्क एज अ एनर्जी जनरेटर. सिमिलरली अगर हम अपने बॉडी की चक्रास की बात करें तो वो भी ये एनर्जी सर्कल्स होते हैं जो हमें आगे चलाते हैं. कौन है भाई ये? डू यू लाइक फ्रेंडशिप? भैया दुनिया में, भारत में 140 करोड़ लोगों में मैं ही मिली हूं तुम्हें दोस्ती करने के लिए. हैं? डू यू लाइक फ्रेंडशिप? सो बेसिकली जो साइकिल का चक्का होता है, एक चक्का घूमता है पेडल से और दूसरा चक्का उसके फोर्स से, उसकी एनर्जी से चलता है, और उसी एनर्जी को कन्वर्ट करके उसमें एक लाइट भी लगा रहता है, डायनामो इफेक्ट जो होता है. तो सिमिलरली क्या होता है, जो हमारे बॉडी के चक्रास होते हैं ना, इनकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं. हम बात करते रहते हैं कि कौन से चक्रा में क्या एनर्जी है, किस चक्रा को बैलेंस करने से क्या क्या फिजिकल एलिमेंट्स या फिजिकल बैलेंसिंग या इमोशनल बैलेंसिंग हम देख सकते हैं, हमारी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं. पर ये चक्रास को एक्टिवेट क्यों करना, राइट? तो बीइंग ह्यूमन, हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारी नीड्स हैं, हमारी फिजिकल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, प्रैक्टिकली ग्रो करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. तो हम अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखें तो उसमें क्या होता है कि चक्रास जो है, जिस तरीके से साइकिल का पहिया घूम के एनर्जाइज करता है, एक एनर्जी को दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म करता है, वैसे ही हमारी बॉडी के चक्रास जो है, एक चक्रा जब बैलेंस होना शुरू होता है तो वो एनर्जी फ्लो होनी शुरू होती है. सन जो है, सूरज जो है, वो सबके लिए निकल रहा है, सबको एनर्जीज दे रहा है. चंद्रमा जो है वो सबके लिए उग रहा है और सबको एनर्जीज दे रहा है, शीतलता दे रहा है, चांदनी दे रहा है, ब्राइटनेस दे रहा है, गिविंग यू अ एमिटेड लाइट है, लेकिन मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है, लेकिन इट एमिट्स लाइट, इट रेडिएट्स, इट गिव्स ब्यूटी टू योर नाइट्स. सिमिलरली सूरज हर सुबह निकल रहा है, इट्स गिविंग एनर्जी. आपका फूड साइकिल सूरज के बेसिस पे चल रहा है. एवरीथिंग इज एनर्जी, हमारे आसपास हर चीज एनर्जी है. अब उन एनर्जी को हमको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते आना चाहिए. एब्जॉर्बेंस की जब हम बात करें कि सनलाइट तो हमको मिल गया, लेकिन अब उस सनलाइट को हमको यूज कैसे करना है, या वो हमारे लिए बेस्ट फॉर्म में हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगा. वैसे अगर हम शाम को माने अगर हम अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, तो जो हमने फ्रेश एयर ब्रीद इन किया, हमारा बॉडी उसे कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और किस हिसाब से एब्जॉर्ब कर रहा है, वो चीज जरूरी है. इवनिंग में अगर हम बाहर गए, चांद के नीचे गए, एक शाम के वक्त हमने मूनलाइट एंजॉय किया, तो उसकी जो एनर्जीज आई हमारे पास में, जो पॉजिटिविटी है, उसको हमने अपनी बॉडी में कैसे रिटेन किया. ये जो चक्रास हैं जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली उस बैलेंस को मेंटेन करते हैं. जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, जो 5 तत्व हैं, तो उन तत्वों से जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, उस शरीर के उन सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करके रखते हैं ये चक्रास. इमोशंस को बैलेंस करते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, जो ऑर्गन्स हैं, जो उनका मेन काम है करने का, उन एक्टिविटीज को बैलेंस करते हैं. अब क्या है, ऊपर से कोई चीज आ रही है और वो नीचे से निकल जा रही है, तो क्या फायदा हुआ उस चीज का? मतलब डाउनलोड तो हर चीज हो रही है, हमारी आंखें कोई चीज देख रही है, हमने सांस ली, हमारे ब्रेन में कोई चीज आई, हमारे दिमाग में कोई चीज आई, हमने उसको प्रोसेस किया, हमारी आंखों ने उसको देखा. अगर हमने किसी चीज को देख के कोई चीज की खुशबू को एक्सपीरियंस किया, या किसी की चीज की फ्रेशनेस को एक्सपीरियंस किया, या हवा ही एक्सपीरियंस की, हमारी बॉडी में जो हवा अंदर ली, हमने इनहेल किया, हमने जो बोला, या हमने जो मुंह से भी श्वास अंदर ली, हमने जिस चीज को खाया, हमने जिस चीज को चखा, हमने जो चीज सुनी,
सारे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उससे जो हमने जिस चीज को देखा, सुना, समझा, सीखा, अब वो हमारे शरीर में कैसा असर करेगा। इस चीज के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे चक्रास को बैलेंस करना हमें जरूरी है, ताकि वो जो एनर्जी ऊपर से हमारी बॉडी में आ रही है, वो एनर्जी का फ्लो जो है पूरे टाइम हमारे बॉडी में नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ भी आए। ऐसा ना हो कि ऊपर से आए और नीचे से निकल जाए, क्योंकि अगर कोई चीज हमने ऊपर से ली और नीचे से, एक पाइप का एग्जाम्पल लेते हैं पानी के, अगर हमने पानी का पाइप लगा लिया और नल खोल दिया और नल से पाइप का पानी जस्ट बह गया, तो क्या फायदा हुआ उस पानी का। लेकिन अगर हमने क्या किया, एक फाउंटेन बना दिया कि नल से पानी आया, फाउंटेन से गिरा और वापस वो चीज नल पे चली गई, तब तो उस एनर्जी का कोई फायदा हुआ। तो वैसे ही हमने वन टाइम किसी चीज को एंजॉय कर लिया, किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लिया और उसके बाद वो चीज हमारी बॉडी से निकल गई, तो क्या फायदा हुआ। लेकिन हमने अगर अपने चक्रास को बैलेंस कर लिया, अलाइन कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो क्या होगा कि वो एनर्जी फ्लो ऊपर से नीचे आएगा और फिर नीचे से ऊपर जाएगा, एंड इट विल कीप रिवॉल्विंग, रोटेशन होता रहेगा, है ना। ये जो मूवमेंट होता रहेगा हमारे बॉडी में, मतलब जो चीजें नीचे की तरफ आने के लिए वो आएंगी और जो ऊर्ध्वगामी हो जाएंगी चीजें, मतलब ऊपर की तरफ भी फिर चलने लगेंगी, तो एनर्जी क्या है हमारी बॉडी में रिटेन हो जाएगी। एनर्जी आके और निकल जाएगी ऐसा नहीं होगा। चक्रा एक्टिव होने से क्या होगा, चक्रा एक्टिविटीज से बेनिफिट ये होगा कि वो चीज चलेगी, घूमेगी, तो जैसे वो नीचे उतरेगी वैसे ही वो ऊपर भी आएगी और रोटेट होती रहेंगी एनर्जीज, राइट। तो जैसे हमारे मूलाधार से स्वादिष्ठान आया, स्वादिष्ठान से मणिपुर आया, मणिपुर से अनाहत आया, अनाहत से कंठ चक्र की तरफ आया, ये जैसे जैसे ऊपर आता रहेगा वैसे वैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, देन कंठ चक्र, देन आज्ञा चक्र, देन सहस्रार, शीर्ष चक्र। तो मैसेजेस जो हैं वो दोनों तरफ, जो एनर्जी मैसेजेस हैं वो दोनों तरफ चलेंगे। नीचे की जो बैलेंसिंग है वो भी ऊपर जाएगी, इफेक्ट करेगी, हेल्दी वे में सारी चीजें बैलेंस आउट होगी। तो ये जो ब्रेन का जो न्यूरो सिस्टम है ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, इंट्यूशन अपने आप बढ़ जाएगी। जो हमने मॉर्निंग में आज, अगर आप लोगों ने देखा हो, वीडियो नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने अपडेट कर दिया था, अपलोड कर दिया था। तो लाइक हम दोपहर में डिस्कस कर रहे थे कि रूट चक्र फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है, अगर बैलेंस हो जाए तो ये फीलिंग एंड सेंसेशन ऑफ इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इमोशंस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी रहता है स्वादिष्टान अगर बैलेंस नहीं रहता। तो अगर स्वादिष्टान बैलेंस हो जाए तो आप क्रिएटिव भी हो जाओगे, आपके इमोशंस भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे, सारी चीजें जो है वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगी। और सही डायरेक्शन में जब आपकी एनर्जीज फिर वापस ऊपर फ्लो होगी तो आपके ब्रेन तक भी सिग्नल सही तरीके से पहुंचेंगे और ब्रेन फिर बाकी जगह जब अपने सिग्नल्स भेजेगा न्यूरॉन्स के हेल्प से बॉडी के, तो आपकी जो बॉडी है वो बेटर फॉर्मेट में फंक्शन करने लगेगी, सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी, इमोशनल बैलेंस हो जाएगा आपका फिजिकल बैलेंस हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन का बैलेंस हो जाएगा, आप क्रिएटिव हो जाओगे, आपको फिर अपने आप में कंटेंटमेंट फील होने लगेगी, आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होने लगेंगे, आपके सैडिस्टिक जो प्लेजर्स है वो ग्रेजुअली विल बी मूविंग असाइड। तो इस किस्म से जब आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप खुद सोचोगे कि हाँ मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मुझे क्या अच्छा हासिल हो रहा है, तो आप फिर और उठना चाहोगे ऊपर। तो ये बेसिक रीजन है कि चक्रास को आपको क्यों अलाइन करना पड़ता है। जब आप अंदर से खुश हो, जब आप अंदर से कंटेंट हो, तो
सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ भी कर सकते हो अच्छे के लिए, अपनी भलाई के लिए भी, दूसरों की भलाई के लिए भी। आप खुश होकर कुछ भी कर सकते हो इफ यू आर हैविंग अ बैलेंस इन योर हार्मोन्स। लेकिन अगर आप दुखी हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आप परेशान हो, आप गुस्से में हो, आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, तो कुछ भी सही नहीं होगा। बीमारियां आपको घेरे रहेंगी, इनसिक्योरिटीज आपको घेरे रहेंगी, इमोशनल डिसबैलेंसेस आपको घेरे रहेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर अगर आपको सारी चीजें अलाइनमेंट में लेके आनी है, सारी चीजें आपको ठीक करनी है, अपने हाथ से ठीक करनी है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, मैं जो बोल रही हूँ कि आपका जो साइकिल का पहिया है, एक एक पहिया, जब एक पहिया आपको इतने सारी बेनिफिट दे सकता, तो आपकी बॉडी में तो 7 पहिए हैं। जब आप 2 पहिए से क्या नहीं कर सकते, 4 पहिए से क्या नहीं कर सकते, तो आपके शरीर में तो 7 पहिए हैं। तो उन पहियों से आप क्या नहीं कर सकते हो। तो जस्ट think about it, think over, utilizing your powers in the right manner, in the right direction, in the right way, and with the right intentions, by balancing your emotions, balancing your feelings, balancing your chakras. Yes, you're allowed. Abhi main hu. I think I'm here another 5 minutes. So I can see new people joining in today as well, but I'm not sure who's who and who's he. But yes, Naveen, it's good to see you after so many days. I mean, maybe you are watching my videos or liking my content, commenting as well, but I could not see you while I was online. So it's good to connect. Hi, Shelly. Hello, Sanjay. Anurag Viraj. Hi, Anurag. Yeah. So that was it. That was for the day. So I'll quickly pull out a card for Naveen and Shelly. Those 2 messages. Let's see what the guidances are there for you. Naveen, this card is for you. The Miriam, it's a sacred vision. Choose to forgive in order to heal. That's the message. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. So if that resonates, Naveen, just let me know. Give me a feedback. And Shelly, this last card of the day is for you. Let's see what guidance does it brings for you. Oh, it is Ma Kali, Kali Ma. And she's asking you to face the fear. And major spiritual changes are unfolding, Shelly. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar higher. So face the fear and embrace the changes. This is your chance to soar. So all the very best, Shelly. With that, I come to the end of the session today. Tomorrow, there'll be a session on angel guidance, and there'll be actually an elaborated session about the angel guidance. So please do connect at 7:30 evening. And if you have any questions related to spirituality, you can connect with me at 7 o'clock in the morning. Thank you for connecting. Thanks and stay blessed. Thanks. Blessings to you too, Mayur Dwaj Singh Rana. Now I took the correct name there. I have closed the window at 8:30 itself. So that was great connecting with you all. You're most welcome. Gratitude to you all too for staying connected and loving me so much. And please do connect with me on my YouTube channel, because many things I'm transferring there, many content from my WhatsApp channel also I'm planning to transfer to my YouTube channel. And do share, like, and subscribe. Thanks a ton.